I will plan after the tumor markers, and since the tumor markers are normal, so I will not go for the CT scan. Okay, then. First of all, I will complete her investigations, the missing investigations. That is, I will send her peripheral smear report and I will send her culture sensitivity report. After completing my investigations, my aims of management are counseling of the patient, treatment of her comorbidities, and provide her various treatment options and help her arrive at a decision. I will counsel the patient about the diagnosis that she is having. She is having fibroid uterus, which is the most likely cause of her irregular menstrual bleeding, and also the likely cause of her subfertility. I will tell her that she is also having the What iron is the deficiency location anemia. of fibroid? Location of fibroid is in the fundus and is in the posterior wall. Although the fibroids Distorting are the cavity or not? G. Is fibroid distorting the uterine cavity or not? This I have not asked. Then how you say that this fibroid is cause of subfertility and heavy menstrual bleeding too? I must have asked it on ultrasound. Sorry, I missed. Is Okay. this fibroid distorting the cavity or not? No. Uh, but but since they are a large fibroids which are causing the increased surface area of the uterus, so the likely cause of the heavy menstrual bleeding is the fibroid uterus. Okay. So I will counsel the patient about the diagnosis and also tell her that she is having iron deficiency anemia. She is hep C positive and have the urinary tract infections. I will tell her about the nature of the course of the disease, the possible hospital admission, need for the blood transfusion, and possible need of the surgery, and the uh, and the associated complications. Then I will treat her comorbidities, including that urinary tract infection, for which I have already sent the culture sensitivity report, but I will start the empirical treatment in the form of the capsule amoxil 500 mg twice a day, and for 7 days, and will review my treatment when the culture sensitivity report arrives. I will involve the multidisciplinary team, including the physician and anesthetist, and I will get her. And after the typing of the anemia, I will build up her hemoglobin, since she has 7 How will hemoglobin, you type her and anemia? by the peripheral smear. Peripheral smear have been given to you. तो मैंने प्लान में क्यों लिखा? पेरिफेरल स्मेयर आपने क्या दिया था? I missed. Have you written it or not? नॉर्मोसिटिक दिया था यार. मैंने प्लान में लिखा हुआ है. अच्छा, नॉर्मोसिटिक दिया था. मैंने नीचे लिख लिया था कि शायद आपने मुझे नहीं दिया, उस टाइम में मिस कर गई. नॉर्मोसिटिक. ओके. Then I will build up her. Then for the anemia, after involving the multidisciplinary team, I will start from the dietary counseling. I will ask her to take the diet rich in the fiber, meat, rich in the meat and eggs, if What she is can her cause afford. of And anemia? What is her cause of anemia? Her cause of anemia is the heavy menstrual bleeding, and which is due to the fibroid uterus. What is her type of anemia? Her anemia is iron deficiency anemia, How you confirmed? because all indices are decreased. Are you sure? हाँ What जी, ये are 70, 30 values to of 35. blood cell indices? जी, What are the values of red blood cell indices you have? 70, 30 or 35. Then all these reduced? What is हाँ normal जी, वो value of MCV? 100, 35 और 35 होनी चाहिए ना. What is normal value of MCV? 100. Anyone else? नहीं 75 से नहीं है. 75 से लेके 96 तक. And what about MCH?
मैम इससे ये नॉर्मल है 32 36 तक होता है नॉर्मल। MCH 27 से 33 होता है। And what MCHC पूछ रही है। MCH बोला है ना, MCHC 335 बोला है। MCV 75 से 100 तक होता है और बाकी दोनों मैंने राउंड फिगर करके 35 याद किए। एक 32 से 36 होता है और एक 33 से 31 से 35 होता है, तो वो राउंड 35 याद करते हैं कि then उससे what is नीचे उससे। your interpretation now? All indices are decreased, so it is iron deficiency How anemia. decreased? What नहीं is ना, और आयरन डेफिशिएंसी में नहीं है ना। what is normal range of MCHC? 35 MCHC नॉर्मल आ गया। 32 to 36 है ना मैम नॉर्मल, 35 नॉर्मल आ गया। Then is it normal or reduced? ये तो नॉर्मल है ना, बिल्कुल ये तो नॉर्मल है ना, MCHC नॉर्मल है। ठीक है। अब मैं इसका HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाऊं क्योंकि वो भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है। ओ ठीक है। What is your MCHC interpretation is now? normal, so I must go for the serum ferritin and HB electrophoresis. MCHC. You, Dr. Idam, have to tell me what is your interpretation of all these indices. What is value of MCV given to you? MCV is reduced, MCH is reduced, and MCHC is normal. What value have been given to you? 70, 30, and 35. Okay, if MCV is reduced, what about MCH? MCH is also reduced, but MCHC What is is normal. normal range of MCH? 31 to 34, 31 to 34 या 5. Anyone else? What is normal range of 27 से है, 27 से 31 मेरे ख्याल में। 27 से 33। So 31 या 33 32 इस तरह है। and what is normal range of MCHC? MCHC तो मैडम फिर वही है ना, 32 से 36। Then 35, is it normal or reduced? मैम नॉर्मल है। Then now what is type of anemia? मैम ये तो That है I ना will नॉर्मल। come after serum ferritin and HB electrophoresis. Why you need serum क्यों ferritin? कराएंगे? ब्लड लॉस की वजह से नॉर्मल सिटिक नॉर्मोक्रोमिक आया हुआ है। मुझे नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, मुझे सही Have मुझे you gone क्लियर through कर। guideline of heavy menstrual bleeding? Yes. Okay, you need to go it through today again. मगर उसमें टाइपिंग ऑफ एनीमिया जो अक्यूट ब्लड लॉस वाली पिक्चर आती तो इसी तरह है, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं सारे इंडिसेस रिड्यूस होते। Then अब मुझे आप बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या वो इसका क्या मतलब what होगा। is type of anemia in heavy menstrual bleeding? In heavy menstrual bleeding it is iron deficiency anemia, but RBC indices नहीं needs। नहीं नहीं, नॉर्मल हाँ, सिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। वही क्या कहती हो? लेकिन होता तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से 3 वीक्स के बाद पिक्चर आएगी, पर है तो आयरन ना, ब्लड तो लॉस हो रहा है कि ब्लड भी नहीं लॉस हो रहा, ब्लड की वजह ब्लड से तो लॉस, आयरन। तो ब्लड लॉस बोल दो ना, दैट्स इट। But सबकी उन्होंने बता दी वैल्यूज। then तो ये कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया? ब्लड लॉस एनीमिया डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड है। Dr. Idam, it's normocytic normochromic, and if it क्रोमिक है was ना, microcytic नॉट आयरन डेफिशिएंसी। it would have been iron deficiency anemia. Normocytic normochromic on indices and on peripheral smear is not iron deficiency. तो इसको कौन सा एनीमिया कहते हैं डॉक्टर शाज़िया फिर हम? Normocytic normochromic anemia और of ये blood loss, acute blood loss. नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक और एनीमिया, Why we go for indices and peripheral smear? वो टाइपिंग ऑफ एनीमिया के लिए। So what are types of anemia? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया And and anemia of chronic diseases. so how will you differentiate all 4 anemias on the basis of indices?
On the basis of peripheral smear and on the basis of the RBC indices. Then what picture will be in folic acid deficiency, in thalassemia, in iron deficiency, and in chronic blood loss? In iron deficiency and in chronic blood loss, there is iron deficiency anemia, microcytic hypochromic in folic acid, and in thalassemia also there is microcytic hypochromic. In folic acid there is macrocytic anemia, but in thalassemia MCHC is normal. Then how you differentiate it? अब ये जो नॉर्मोसिटिक है, ये जो एनीमिया ऑफ द ब्लड लॉस आप कह रही हैं, इसमें फिर हमने इसको बिल्ड भी ब्लड से ही करना, क्योंकि अगर ये आयरन डेफिशिएंसी नहीं है तो तब तो मैं आईवी आयरन भी दे ही नहीं सकती, आयरन तो कुछ नहीं करेगा, फिर तो मैं ब्लड ही दूंगी. You need to go through all anemia written in my book today, and we will discuss it tonight again. Okay, manage your patient. अब एनीमिया की मैनेजमेंट मुझे नहीं पता इस पेशेंट में क्या करनी है. एनीमिया ठीक है करेक्ट हो गया. जी, ठीक है. Once her anemia is corrected, her urinary tract infection is settled, I will discuss with her and her fitness from the physician regarding her hepatitis C status is taken. I will discuss with her various management options, and since she is having a fibroid uterus which is causing the 26-week size mass and also causing the irregular menstrual bleeding, her hemoglobin is dropped to 7. I will give her that surgical treatment in the form of the myomectomy. Before surgery, I will get her pre-op fitness done. I will arrange at least 4 units of the blood, and I will tell her. I will tell her about that type of the anesthesia, mode of the type of the type and the mode of the surgery, possible intraoperative. After discussing with the anesthetist. Will counsel anesthetist will counsel regarding anesthesia, or you will counsel? Okay, I will counsel her about the type of the surgery, the mode of the surgery, about the possible need of the blood transfusion, intraoperative, post-operative complications, and need for the any additional procedures. And I will take the data in informed consent. After arranging, will you counsel her? Since my patient is having 26 weeks size 26 week size mass, which is a big mass, although there is less than 1% chance, but it can involve the surrounding structures, and the consent for the colostomy and it needs to be taken, and any myomectomy cannot be proceeded without the need of the hysterectomy, although there is less than 1% chance, and it is very less likely, but I will counsel and take written informed consent. Okay. Then I will then the night before surgery, I will ask her to be nil by mouth by 12 midnight, and on the day of the surgery, I will provide her gown, will shift her to the theater, will give her the will secure 2 wide IV lines and IV wide bore IV lines, and give her a morning shot of the antibiotics. After the induction of the anesthesia, I will reconfirm my findings under anesthesia, and after gloving, gowning and dripping. Ji? What do you mean by shot of antibiotics? Early morning dose of the antibiotics. What is meaning of word shot? It is the after confirming my findings under anesthesia, gloving, gowning and dripping, I will open the abdomen by phenylseal incision. I will open it layer by layer, and will inspect the mass, size, uterus, and bilateral ovarian status, and then I will do, first of all I will do the tubal status check per operatively. I will do her. I will pass the cervical catheter, and will instill the dye and watch for the free spillage. Then I will proceed with the myomectomy, and I will try to
I will try to be vigilant for the During risk of the mammectomy, hemorrhage and risk patient of the developed heavy bleeding and collapsed. during surgery, I will be vigilant for the hemorrhage and adhesions. I will try to reduce the risk of the hemorrhage by the meticulous surgical techniques, by the intermittent application of Was the there any tourniquet. option of reducing blood loss pre-surgery? Pre-surgery blood loss is reduced by optimizing the blood hemoglobin level, and also there is an option of GnRH analogs Then why you have not discussed, given to her? which could be discussed with my patient, but Why you have uh, not discussed? Now you have, during mammectomy, patient is bleeding heavily. ये काउंसलिंग में GnRH का खुद ही से जिक्र करके जाऊं? Definitely, you need to give GnRH to your patient for 3 months to reduce her size of fibroid, to reduce her I'm risk not of in favor hemorrhage, of and giving. reduce the risk of hysterectomy as she is having subfertility. I am not in favor of giving GnRH to this patient because I will do the risk versus benefit stratification of reducing the risk of the hemorrhage, and but versus since it is 26 week size mass, it will not change the type of the incision. I will give and I say Not and type it of has certain incision, but what disadvantages. about her blood loss and size of fibroid? We are not There are type certain of complications of blood loss can be reduced by other methods like the good surgical techniques, which when GnRH will distort my field of cavity, my surgical field, the capsule, and also certain small seedling fibroids can be missed, which will regrow, and they can cause early recurrence. It is not, it is although it can be arranged, but there is an issue of the cost effectiveness. So I will do the risk versus benefits at stratification. My Have you type of discussed incision with is your not patient? changed. I What will is, do the have intermittent you tourniquet clamping have you at discussed the level of. with your patient about GnRH, and have she refused that she can't afford? I was myself not in favor of the GnRH Okay. analogs You in have this done patient. This is mammectomy of your patient, and later on she presented to some other doctor, and on husband semen analysis it was azoospermia. But you told her that her cause of fertility was fibroid. Then वो husband semen analysis तो investigations में मांगा ही नहीं. and post surgery her bilateral tubal blockage. And now she ended up in IVF, and she has no money for that. Now, what are her options for fertility options? Husband शायद semen analysis ये ना बताया है मांगना ना, बहुत बड़ा सब बलंदर नॉर्मल है. है, RHSG भी नॉर्मल है, तो बताया है. हस्बैंड सीमेन एनालिसिस नहीं मांगा था ना इन्वेस्टिगेशंस में. ये नहीं, बहुत बड़ा लेकिन तुमने ब्लंडर है. बताया है ना कि नहीं, तुमने बताया था कि हुआ है और नॉर्मल है, और तुमने यही That बोला है कि लेकिन वो तो HSG also हुआ है. 1 ईयर बैक की तो कोई नहीं होती सिग्निफिकेंस. वो meaning मुझे that खुद you से भी have not मांगना चाहिए था. confirmed that. हाँ, What वो मांगना investigation चाहिए you था. have asked for subfertility? What is primary concern or primary complaint of your patient? वो प्राइमरी सबफर्टिलिटी, वो सेकेंडरी सबफर्टिलिटी है, और सबफर्टिलिटी के लिए What सबसे पहले workup मुझे you have HSA done for her हस्बैंड सीमेन. subfertility? हाँ, And what सबफर्टिलिटी की is major इन्वेस्टिगेशन मिस indication of myomectomy in your patient? सबफर्टिलिटी. Then सब फर्टिलिटी के लिए मुझे उसका हस्बैंड सीमेन एनालिसिस भी मांगना चाहिए था. मुझे उसकी हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी की कोई रिपोर्ट अगर अवेलेबल थी वो भी मांगनी चाहिए थी. कोई अगर उसने लेप्रोस्कोपी कराई थी वो भी मांगनी चाहिए थी. वो सारी डिटेल्स मांगनी चाहिए थी, वो मैंने सारी मिस कर दी. what you Now have I managed her? इसमें FSH और LH मांगे नहीं या नहीं? ये किया कि फाइब्राइड निकाला, दे ब्लीडिंग करवा दे के कोलैप्स कर दिया और डे टू करवा दिया. LH FSH प्रोलैक्टिन भी और थायराइड भी मांगना चाहिए था. डॉक्टर शादी थायराइड भी मांगू ना हर सब फर्टिलिटी के केस में. No, thyroid is history indicated. लेकिन जो 10% में सब क्लिनिकल होता है उसका क्या करूं? और उसको तो ब्लीडिंग भी है और उसको सब फर्टिलिटी भी है. अगर उसके ब्लीडिंग का आपको कॉज मिल रहा है ना 26 वीक साइज फाइब्राइड. लेकिन वो तो 20% ऑफ केसेस में एंडोमेट्रियल रीजन से भी हो सकती है ब्लीडिंग. अकॉर्डिंग टू नाइस 10% थायराइड जो सब क्लिनिकल है, और अगर वो TSH और T4 कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है तो ना करा लूं. वेयर इट इज रिटन.
ये हर बुक में लिखा है 10% Okay. थायराइड सब क्लिनिकल होता है, Okay, जेपी में भी लिखा है। you need to send. No, JP is not our reference book. What are our reference books? ईबीएम और ड्यू हर्ट्स है, Okay, तो you can वो take इसका रेफरेंस तो मेरे पास है, मैं आपको screenshot भेज दूंगी। or due hertz, then we will discuss accordingly. जी ठीक है। डॉक्टर शाजिया, ये बताइएगा ये जो आप करते हैं एचएसजी कराते हैं उसकी कितनी लिमिट है? 1 ईयर तक हो गया, जैसे 1 ईयर बैक इसका हुआ है, वो नॉर्मल था, तो इसका दोबारा भी कराएंगे? जो हस्बैंड सीमन एनालिसिस है वो 3 मंथ पुराना हो तो वो आप तो मैम ठीक है जी, जो एचएसजी HSG है वो अगर कराया हुआ है ना इसने? पुराना है तो वो भी आप रिपीट करते हैं। और अल्ट्रासाउंड HSG एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी, इन तीनों की जी वैलिडिटी 1 ईयर तक है। ओके मैम। अब इस डॉक्टर शाजिया ये बताएं कि इस वाले ये वाला जो पेशेंट है इसकी जो ओवरी में कम्प्लेक्स सिस्ट है, इसका मैंने क्या करना है? वो तो सिस्टेक्टमी कर देनी है उसकी। अच्छा वो मैंने, और उसको मैंने साथ लेकर, उसको सबसे पहले आपने 3 मंथ तक GnRH देना था, इसलिए कि उसकी सब फर्टिलिटी मैंने जीएनआरएच नहीं देने, या मुझे देने। जीएनआरएच में से जस्टिफाई नहीं होते। फाइब्राइड में अगर व्हाट आर इंडिकेशंस ऑफ GnRH, अगर मायोमेक्टमी से जीएनआरएच की देखे ना, रिक्वायर्ड पेशेंट को, इस पेशेंट को आपने GnRH नहीं दिया तो आपने GnRH कहाँ यूज करना है? देखें जीएनआरएच मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर उसका सब मिडलाइन इंसिजन होगा 30 वीक से ऊपर तक तो वो मैं उसको देखो सोच डॉक्टर लूंगी। नीलम, पहली बात तो ये कि इन चीजों से बाहर आ जाओ। व्हाट यू थिंक और व्हाट यू डोंट थिंक, व्हाट इज नहीं वो रिटन पढ़ इन के जो बुक्स। मैंने कंसेंसस बनाया है ना, नहीं, ये सारी चीजों से पढ़ के देखें, जीएनआरएच के नुकसान भी तो देखें ना। वो अगर छोटे फाइब्राइड्स होंगे, सीडलिंग फाइब्राइड्स होंगे, उनको तो वो हाइड कर, फाइब्राइड आपने निकालने हैं इस पेशेंट के। सीडलिंग फाइब्राइड्स मैंने नहीं निकालने, मैंने मोर देन 1 सेंटीमीटर के तो सारे फाइब्राइड निकालने हैं। जितने भी मोर देन 1 सेंटीमीटर के होंगे मैं छोड़ूंगी तो नहीं ना जब मैं अभी सर्जरी वो करने 1 जाऊंगी। सेंटीमीटर के फाइब्राइड्स आपके अल्ट्रासाउंड पे आए हैं? अल्ट्रासाउंड सारे 1 सेंटीमीटर वाले फाइब्राइड्स पिक भी नहीं साउंड करता, सेंसिटिविटी फॉर 1 सेंटीमीटर फाइब्राइड नहीं करता? सारे नहीं पिक करता। समटाइम्स अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ 2 होते हैं और खोलो तो 14-14 निकल आते हैं, छोटे 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 छोटे। देखो डॉक्टर नीलम, ऐसे नहीं होती, हर बात आपकी एविडेंस बेस्ड होती है, ठीक है? और आपके अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी अगर वो एंडोमेट्रियल थिकनेस 2 mm, 3 mm और 4 mm पिक कर लेता है, व्हाई अल्ट्रासाउंड कैन मिस 1 सेंटीमीटर फाइब्राइड? और अगर आप सोनोलॉजिस्ट को लिख के भेजें, आई नीड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फाइब्राइड्स, देयर लोकेशन एंड देयर एसोसिएशन और डिस्टेंस फ्रॉम एंडोमेट्रियल कैविटी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो आपको 1 सेंटीमीटर का फाइब्राइड नहीं बताएगा? एंड वो कोई ऐसे सीडलिंग फाइब्राइड्स हैं जो मायोमेट्रियम में या एंडोमेट्रियम में या कहीं भी हैं, तो वो जिस पेशेंट की आप मायोमेक्टमी कर रहे हैं, यू आर कंसर्न अबाउट हर फर्टिलिटी एंड यूट्राइन प्रिजर्वेशन, will you look for or search for some seedling fibroids? अच्छा तो जीएनआरएच में दूं सब, ये 26 वीक साइज है इसलिए दूं? At high risk of hemorrhage and अच्छा risk of hysterectomy, although 1%, but even 1%, 1 in 100 can be your patient. ओके। So first you need to मतलब उसका क्या लिमिट give रखें कि इतना साइज हो तो उसमें जीएनआरएच कंसीडर करें जब और भी इतना हो तो आपने ना करें? फर्टिलिटी के लिए करनी है मायोमेक्टमी, अनटिल अनलेस आपका फाइब्राइड सब सिरोजल हो या पेडंकुलेटेड हो, जिसमें आपको पता है मैंने यूट्रस को नहीं छेड़ना, मैंने आराम से क्लैंप लगाना है और फाइब्राइड रिमूव कर लेना है, then irrespective of size of that fibroid you don't need GnRH analogs. But वो तो आपने तो ये भी नहीं देते हैं? पूछा कि ये फाइब्राइड सब सिरोजल है, इंट्राम्यूरल है, सब म्यूकोजल है, कैविटी। वो आपने खुद ही बता दिए थे, एक फंडस में बताया है और एक आपने फंडस उसके में पोस्टीरियर वॉल में। फंडस का क्या मतलब है? फंडस के ऊपर सब सिरोजल नहीं हो सकता, या फंडस में सब म्यूकोजल नहीं हो सकता, या आपको कैसे ठीक है पता ये भी चला बता फंडस से सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल या सब सिरोजल की क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको? क्या फंडस ठीक में है तीनों लेयर्स नहीं होती? ओके। ये यहाँ पे लग के पूछ के जाऊँ कि ये सब म्यूकोजल है या सब सिरोजल है, और उसके बाद और डॉक्टर शाह अगर ये 12 वीक्स है तो भी जीएनआरएच कंसीडर करें?
जितना भी है GnRH कंसीडर करें। जब आपका फाइब्राइड सब म्यूकोजल या इंट्राम्यूरल है, जब भी आप यूट्रस के अंदर से फाइब्राइड आपने निकालना है, देयर इज रिस्क ऑफ हेमरेज। और अगर लेस देन 12 वीक्स है फाइब्राइड और सब फर्टिलिटी है, और उसके वो तो वैसे ही इंडिकेशन नहीं है फॉर मायोमेक्टमी। 12 वीक से ज्यादा का फाइब्राइड है इंडिकेशन। डेफिनेटली मायोमेक्टमी हमने करनी ही तब है ना जब वो 12 वीक्स से ज्यादा होगा, स्पेशली फॉर सब फर्टिलिटी। और अगर फर्टिलिटी नहीं चाहिए और आपका फाइब्राइड उससे बड़ा है, तो फिर आपको मायोमेक्टमी की कोई इंडिकेशन नहीं है, फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हिस्टेक्टमी करते हैं। 28 ईयर्स पे। ओहो, जब आपके पेशेंट को फर्टिलिटी नहीं चाहिए और फाइब्राइड मोर देन 12 वीक्स है, व्हाट आर अगर यही इंडिकेशंस ऑफ मायोमेक्टमी? मायोमेक्टमी की इंडिकेशंस, एनी फाइब्राइड मोर देन 12 वीक साइज, एनी फाइब्राइड कॉजिंग menstrual irregularities और any that is the concern to the patient wishes, ये इंडिकेशंस है। अगर यही पेशेंट मेरे पास यंग एज में आ जाती है, जैसे मेरे पास 38 की है फैमिली उसकी, या 40 की है फैमिली उसकी कंप्लीट है, और मैंने उसकी मायोमेक्टमी ही प्लान करनी है, तो फिर भी मैंने GnRH कंसीडर करना है। You will plan her myomectomy. मेरी लोग हिस्टेक्टमी होगी ना। यंग एज पे हिस्टेक्टमीज नहीं जस्टिफाई होती। हमारे यूनिट क्यों में नहीं तो होती? बहुत माइंड करते थे सारे, नहीं वो डॉक्टर कहती थी कि आप हर किसी की डॉक्टर वो हिस्टेक्टमी कर देते। your exam is not unit based. What about your recommendations? ये इरम, ये लिखो। सबसे पहले आपने हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की गाइडलाइन ध्यान से बैठ के पूरी पढ़नी है। उसमें एनीमिया जी ठीक है, करेक्शन के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं वो दी हुई हैं गाइडलाइन में, और उसका वर्कअप ठीक। आपने कितना करवाना है ये पढ़ना है। किसी पेशेंट की एग्जाम में मायोमेक्टमी नहीं करके आनी, सबकी हिस्टेक्टमी करके आनी है। पता नहीं मेरा कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा ये। हेलो, जी जी, इसके अलावा आपने मैंने आपको फाइब्राइड पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ फाइब्राइड कहाँ से पढ़ा हुआ है? ड्यूअर से? हाँ जी, ये मैंने शॉज से भी पढ़ा हुआ है और ड्यूहर्ट से यहाँ भी से भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, ये जितनी जितनी जगहों से पढ़ा हुआ है इसे आज रिव्यू करना है। और इस मुझे सिर्फ एक बात बता दें इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट दोबारा कि लिखना। हमने मायोमेक्टमी, 40 इयर्स ऑफ एज पे ठीक है, आप सब लोगों में से कोई बंदा मुझे जस्टिफाई कर दे इंडिकेशन ऑफ मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी इज, शादी मैं तो हिस्टेक्टमी करूंगी, मैं तो हिस्टेक्टमी करूंगी, मैं तो मायोमेक्टमी नहीं करूंगी। देखो और मेरे साथ दिल की मायोमेक्टमी विश में नहीं है। रिस्क ऑफ सीवियर हेमरेज, जी, risk of hysterectomy, recurrence of fibroids, and when फाइब्राइड fertility, है। and if she presented with heavy menstrual bleeding, there can be other causes for heavy menstrual bleeding. Then at 40 years of age, she is at a risk of endometrial hyperplasia and ovulatory HMB, and then moving forward at risk of carcinoma, blah blah. So, and hysterectomy is much safer procedure as compared to myomectomy. There is no risk of heavy blood loss in hysterectomy. By doing myomectomy, you will put your patient at risk of heavy bleeding, risk of blood transfusions, then risk of hysterectomy, and later on risk of recurrence of fibroids. And it's possible that even if you remove fibroid, her complaint of heavy menstrual bleeding may not settle. Then she is at risk of hyperplasia, at risk of carcinoma too.
And if fibroids recur in next 5 years, then will you do second surgery at 45 years of age? Then again will you do myomectomy or hysterectomy? फिर तो जाहिर है हिस्टेक्टमी ही बनेगी। Then But if Shazi, अगर इसमें जो 5 आपने साल के बाद hysterectomy करनी है, why not 5 years ago? शाजी, आपने जो ओवेरियन सिस्ट बताई है कॉम्प्लेक्स, वो क्या है? वो मैंने वैसे ही ऐड की थी इसे ट्यूमर मार्कर्स पूछने के लिए। अच्छा ठीक है, वरना उसकी अगर सपोज अगर है वो भी तो क्या हो सकती है? आपने कहा ना कॉम्प्लेक्स, तो क्या ये एंडोमेट्रियोटिक है या हेमरेजिक सिस्ट है? प्रोबेबली डर्माइड होगी जो कॉम्प्लेक्स है इस एज पे। हेमरेजिक होती तो वो सिम्टोमेटिक होती ना, पेशेंट को कोई साइन सिम्टम्स नहीं थे, इंसिडेंटल थे। जिस पेशेंट में फर्टिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है या फैमिली कंप्लीट है और सिम्टोमेटिक फाइब्राइड है, फाइब्राइड भी आपने डिटरमिन करना है सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। अगर तो एसिम्टोमेटिक फाइब्राइड है, सपोज कोई सब सिरोजल फाइब्राइड लेस देन 12 वीक्स है पेशेंट का, उसे कुछ नहीं कह रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली कंप्लीट है या ना नहीं है कंप्लीट, जब कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम उसे ट्रीट ही नहीं करते। एसिम्प्टोमेटिक लेस देन 12 वीक साइज को हम ट्रीट नहीं करते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात ये है कि फाइब्राइड विद सब फर्टिलिटी, उसमें आपने डिटरमिन करना है फाइब्राइड मायोमेक्टमी भी सब फर्टिलिटी के साथ तब इंडिकेटेड है जब आप पेशेंट की सब फर्टिलिटी के बाकी सारे कॉजेज एक्सक्लूड कर लें। सही है ना? जी जी। आपने तो उनमें से किसी को बॉदर नहीं किया, आपने ओवुलेशन नहीं देखी, आपने ट्यूब्स नहीं देखी, आपने हस्बैंड से सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। कर दी, ये तो वैसे ही नहीं बनती थी। और अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि पेशेंट का एज़ोस्पर्मिया है तो आप मरीज को कम से कम ये बता देते कि मैं आपकी रसोली रिमूव कर रही हूँ, इससे हो सकता है आपकी ब्लीडिंग की वजह से ब्लीडिंग है वो सेटल हो जाए, बट इट्स आपकी फर्टिलिटी का मेजर प्रॉब्लम इज योर हस्बैंड सीमन एनालिसिस। फिर पॉसिबल है कि फाइब्राइड के साथ उसे पीसीओएस भी हो, और आपने जो डाई टेस्ट किया वो भी मायोमेक्टमी से पहले कर दिया, उसके बाद जब आपने मायोमेक्टमी की है, आपका फंडल फाइब्राइड है 20 वीक्स और वट एवर, उससे क्या ट्यूब्स की एनाटॉमी डिस्टॉर्ट नहीं होगी? लोग शाजी पहले करते हैं कि मायोमेक्टमी के बाद करते हैं? क्योंकि हम पहले नहीं करते। इसलिए कि आपको ने बाद में कंफर्म करना है ना कि आफ्टर सर्जरी क्या मेरी ट्यूब्स इन्वॉल्व हुई हैं, डैमेज हुई हैं, स्टिच में आई हैं, या अब क्या? वो तो मैं 3 मंथ्स आफ्टर मायोमेक्टमी करते हैं ना, वो तो मायोमेक्टमी के 3 मंथ्स बाद नहीं हम चेक करते ट्यूबल स्टेटस के एडहेरेंस हुई हैं या नहीं हुई। वो एडहेरेंस जो हुई है ना, बट अब आपने ये देखना है कि आपकी सर्जरी के बाद ट्यूब का क्या स्टेटस है। तो वो जो मायोमेक्टमी वाला स्कार है या इंसिजन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? जब आप मैनिपुलेशन आप मायोमेक्टमी करके उसके बाद डाई डालेंगे ना, वो आपने क्लोज कर दिया जो भी इंसिजन है, या नहीं करते? ठीक है, हाँ जी करते हैं, लेकिन वो मुझे मुझे यही था कि उसको हमने मायोमेक्टमी से पहले ट्यूबल स्टेटस चेक करना है, मायोमेक्टमी के बाद करना है, तो फिर बाद वाला और उसका हमने रिपीट कब करना है ये डिक्लेयर कर बात है कि आप अगर पहले चेक कर लें और ट्यूब्स पेटेंट है, अब ड्यूरिंग जी मायोमेक्टमी अगर ट्यूब्स को कुछ हुआ है, ठीक है, वो ठीक ब्लॉक है। हो गई हैं और बाद में ब्लॉक्ड आ गई हैं, आपने मरीज को काउंसल किया हुआ है, आपकी ट्यूब्स पेटेंट है, पेटेंट है। और जब बाद में ब्लॉक आई हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो मायोमेक्टमी के बाद करूं? लेकिन फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि पहले ही पेटेंट थी या मेरी सर्जरी रिलेटेड हुई? ये बात नहीं आ जाएगी? पेटेंट थी या सर्जरी रिलेटेड थी, अब क्या स्टेटस है? मैनेजमेंट तो उस पे करनी है आपने। अच्छा नहीं, क्योंकि देखे हमने 3 मंथ्स के बाद कंफर्म कर तो लेना है, अगर सर्जरी रिलेटेड होगा तो वो तो 3 मंथ्स बाद भी तो पता चल जाएगा, और 3 मंथ्स बाद ही हमने उसको फर्टिलिटी के लिए अलाउ करना है ना, पहले 3 मंथ्स तो उसकी हीलिंग को टाइम देना है। तो वो बैठ के ये पढ़ना है सारा, इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि मैं मरीज को बता रही हूँ कि हमारी ट्यूब्स पेटेंट थी, ऑपरेशन से पहले मैंने ऑपरेशन किया, 3 महीने बाद हमारा डाई टेस्ट करवाया है और अब ये ट्यूब ब्लॉक्ड है, अब जाके तुम आईवीएफ करा दो। उसने कहना डॉक्टर साहब मुझे 5 लाख दे दें आईवीएफ का।
आपने ऑपरेशन करके मेरी ट्यूब्स ब्लॉक की हैं। चलो ओके, ये खत्म होने वाली है मीटिंग। बाय बाय। नहीं तो